नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। पार्टी में चोर बने बेफाम, फिर से एक बार दो जगह पर चोरी का किया प्रयास। वलसाड़ पुलिस की टीम ने धमराची से 30 लोहे के पोल को किया जब्त। पार्टी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर खड़ी एक ट्रक के पीछे बाइक चालक घुस जाते हुई थी दुर्घटना। अब समाचार विस्तार से। पार्टी में चोर बने बेफाम, फिर से एक बार दो जगहों पर चोरी का किया था निष्फल प्रयास। फिलहाल ठंड की मौसम चल रही हो, पार्टी शहर में तस्कर सक्रिय हुए हैं, तो चोरों द्वारा रात्रि का लाभ उठाकर चोरी की वारदातें घटित हो रही है, जिसको लेकर पुलिस जैसे नींद में सो रही होने का फलित हो रहा है। तो पुलिस प्रजा का विश्वास बनाए रखे, उसके लिए ऐसे चोरों को दर दबोचा जाए, वह आवश्यक बन रहा है। पिछले कई वक्त से पार्टी शहर में बस्ती वाला यानी लिमड़ा चौक से दमनी झापा के क्षेत्र में कम वक्त में 4 से 5 जितनी चोरी की घटनाएं घटित हो चुकी है, जिसमें पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे हैं, फिर भी चोरों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, जिसको लेकर अब तस्कर बेफाम बनकर पुलिस को चैलेंज कर रहे होने का और बिंदास शहर में घूम रहे हैं। तो बुधवार देर रात वाणिया वार्ड में रहते एडवोकेट ऐसे नील शशि भाई सेठ के घर पर और उनके सामने आए हुए घर पर कुछ दिन पहले ही चोरी की घटना घटित हुई थी। तो फिर से एक बार चोरों ने चोरी को अंजाम देकर भाग जाने का प्लान बनाया हुआ था, पर बंद घर का ताला तोड़ते वक्त शशि भाई जग गए हो, चोरों को वहां से भागना पड़ा था। घटना के बारे में पार्टी पुलिस को जानकारी देते पार्टी पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंची थी, पर जिस रास्ते से चोर फरार हुए थे उस रास्ते से लेकर लार्ज स्ट्रीट में पहुंचे थे, जहां पर भी कृणाल भाई चापानेरी के घर को निशाना बनाया गया था, पर उनकी भनक कृणाल भाई को लग जाते वहां से भी चोरों को भागना पड़ा था। ऐसे लोगों की सतर्कता से चोरों को ऐसे ही भागना पड़ा था। तो अब वक्त वक्त पर चोरों द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए आ जाते हो, पार्टी पुलिस को जैसे चैलेंज कर रहे हैं, तो दूसरी ओर रात के दौरान ऐसे बेखौफ बने चोरों को लेकर लोगों में भय का माहौल फैला हुआ है। तो अब शहरी जनों की मांग है कि पुलिस नाइट पेट्रोलिंग सख्त की जाए। હું આટલે સૂતેલો હતો મારા રૂમમાં આગળ જ, અને મને એક અવાજ આવ્યો બારણા તોડવાનો, અને એકદમ હું જાગી ગયો અને બહાર નીકળીને મેં થોડી બૂમ પાડી કે કોણ છે ભાઈ, કોણ છે, અને એ વ્યક્તિ આટલેથી ભાગીને મારા દેખતા જાય. આગળ પણ અમારે ત્યાં પણ ચોરી થઈ ગઈ છે, અમારે ત્યાં થઈ અને 24 કલાકની અંદર અમારા સામે થઈ, અને આ બ્રાહ્મણ ફળિયામાં પરિમલ પંડ્યાને ત્યાં થઈ, અને એક્ઝેક્ટ એની પાછળ જ કાલે થઈ છે. એટલે કોશિશ થઈ છે ચોરી કરવાની. તો ભાઈ એક જ મેસેજ આપું છું કે ભાઈ આ શું છે, હવે હદ થઈ ગઈ છે. શું એટલે મર્ડર થવાની વાટ જોવો છો કે કઈ મોટી કઈ ઘટના બનવાની વાટ જોવો છો તમે? હજુ સુધી કોઈ રિસ્પોન્સ મળ્યો નથી કે કોઈ માણસ એક વ્યક્તિને પકડાયો નથી, એક વ્યક્તિને એ લોકો પકડી શક્યા નથી. હવે એટલું જ કેવું કે ભાઈ થોડા એલર્ટ થઈ જાઓ, થોડી કામગીરી થોડી બતાવો, કારણ કે આ હવે મેં કીધું તેમ હવે આપણે વાટ જોવાની કે કોઈનું મર્ડર થઈ જાય કે કરોડોની ચોરી થાય પછી જ દોડવું, એવું કંઈ નિયમ હોય? હા, આ કોશિશ થઈ છે, અમારી બાજુમાં તો ખાલી કોશિશ થઈ છે, પણ એ કોશિશ ઘણી વખત બહુ મોંઘી પડી જાય છે, લોકોને જીવનો જોખમ થઈ જાય છે. તો કંઈ એક્શન લેવો, બીજી તરફ થોડું ધ્યાન ઓછું આપો, અને ગામમાં લોકોને સાચવવા માટે તમે કંઈ પ્રયત્ન કરો. મારું લાસ્ટ સ્ટ્રીટમાં ડમણી ઝાપા રહેવાનું છે. લગભગ આ ચોરીનો બનાવ રાતના 3:30 વાગે જેવો થયો, સૂતા હતા ને લગભગ આ થોડોક ખટકવાનો અવાજ આવ્યો, તો અમે લોકો થોડા મેં અને મારી વાઈફ જાગી ગયા. તે પછી જરાક વાર જોયું કે શું હશે, કંઈ અવાજ આવ્યો, પણ પાછો કંઈ અવાજ આવ્યો
એટલે અમે ગેલેરીને અંદરની લાઇટો બધી ચાલુ કરી નાખી ને લગભગ અમે 5 મિનિટ સુધી રાહ જોઈ ને વોશરૂમમાં પાછો ગયો ત્યાંથી પાછું એ લોકોએ ગેલેરી પાસે લગભગ સંતાઈ રહેલા હશે ને ત્યાંથી નીચેથી આ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ફર્સ્ટ ફ્લોર પરથી જમ્પ માર્યો તો એનો અવાજ આવ્યો એટલે કન્ફર્મ થયું કોઈને કોઈ ચોર જેવું હતું જ ને તે પછી મારી વાઈફ એને અમે બંને કિલ્લા પર ભાગી જતા જોયા હતા ને આ અમારો દરવાજો તોડી નાખેલો હતો તારું તોડી નાખેલું હતું તારું અરે આગળ ખોલ નાખેલી હતી અમારે કેવું છે પોલીસને કે થોડુંક પેટ્રોલિંગ કરો સાહેબ કેમ કે આ મોહલ્લામાં લગભગ મહિનામાં ચોથો બનાવ છે ને હવે પેટ્રોલિંગની ખાસ જરૂર છે આ વસ્તુ માટે ને રાતના લગભગ આ ઓલમોસ્ટ ટાર્ગેટ છે 2:30 થી 5ના ગાળામાં ટાર્ગેટ લાગતા છે આ લોકોને પોલીસને અમારી વિનંતી કે પેટ્રોલિંગ સાહેબ થોડું કરો ને આ કિલ્લા પર ચોરો નાસે જેવું લાગે છે બધાને આ સાથે એક મારા બીજી વાતો પણ મળી છે કે વાણિયાવાડમાં નીલ શશીભાઈ કરીને છે એમને ત્યાં બી એની બાજુનામાં કંઈ પ્રયાસ થયો તે શશીભાઈને બી લગભગ મહિલો મેં તેમને બી કીધું કે આજ મેં મારી પાસે સીસીટીવી ફૂટેજ છે તેમને હાથે બી મેં બતાવ્યું કે આજ હતો કે એમને બી કીધું કે આ જ વ્યક્તિ હતો એ બી કન્ફર્મ થયું છે એટલે સાહેબ ત્યાં 2 વાગ્યાનો બનાવ થયો ને પછી આ 3 ને 3:30 વાગે અમારા ઘરે જેવા આવેલા। बलसाड़ रूरल पुलिस की टीम ने धमराची से रेलवे के 30 लोहे के पोल को किया कब्जे में। एक आरोपी को गिरफ्तार कर कुल 34 लाख के मुद्दामाल को किया जब्त। बलसाड़ रूरल पुलिस की टीम को मिली जानकारी के आधार पर हाईवे पर भिलाड़ से सूरत की ओर जाते एक ट्रेलर नंबर GJ21Y 9378 को रोककर तलाशी लेते ट्रेलर में से रेलवे के 30 पोल और ट्रेलर मिलाकर कुल 34 लाख के मुद्दामाल को पकड़ा गया था। वापी जीआरपी की टीम को आरोपी को रूरल पुलिस ने सौंप कर आगे की जांच टीम द्वारा जारी रखी गई है। बलसाड़ एसपी राजदीप सिंह झाला की सूचना और मार्गदर्शन के अंतर्गत बलसाड़ रूरल पुलिस थाने के इंचार्ज PSI SB झाला और रूरल पुलिस थाने के ASI चंदू भाई सुरपाल सिंह और HC दिनेश भाई और अन्य पुलिस जवानों के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे। उस दौरान टीम को मिली जानकारी के आधार पर वापी की ओर से आ रहे एक ट्रेलर नंबर GJ21Y 9378 में बिल के बगैर लोहे के पोल भरकर सूरत की ओर जा रहे होने की जानकारी मिली थी। जानकारी के आधार पर बलसाड़ धमराची हाईवे पर वॉच रखी गई थी। उस दौरान जानकारी वाला ट्रेलर आते ही रोककर जांच करते ट्रेलर में 30 लोहे के पोल के बारे में पूछताछ करते यह लोहे के पोल बिल के बगैर के होने की मालूमात होते साथ ही वापी जीआरपी पुलिस थाने में रेलवे के 30 पोल चोरी होने की FIR दर्ज की गई थी। बलसाड़ रूरल पुलिस ने आरोपी को रेलवे पुलिस को सौंपकर आगे की जांच जीआरपी की टीम द्वारा शुरू रखी गई है। पाड़ी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर खड़ी ट्रक के पीछे बाइक चालक की टक्कर होते दुर्घटना में युवक की घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत। पार्टी एंजल अस्पताल के पास बुधवार देर शाम को अंदाजित 8 बजे के आसपास नेशनल हाईवे नंबर 48 वापी की ओर जाते ट्रैक पर से तेज गति से एक अनजाने वाहन हाईवे क्रॉस करते वक्त एक शख्स को अपनी चपेट में लेकर हाईवे पर फेंक दिया था, जिसको लेकर शख्स की घटना स्थल पे ही दर्दनाक मौत हुई थी। घटना के बारे में IRB की टीम और 108 को जानकारी देते तुरंत ही टीम घटना स्थल पर पहुंची थी, पर पुलिस दुर्घटना होने के आधे घंटे बाद भी घटना स्थल पर नहीं पहुंची थी, जिसको लेकर हाईवे पर जहां तक पुलिस नहीं आए तब तक शव ऐसे ही पड़ा हुआ था, जिसके बाद देर से पार्टी पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर IRB की एम्बुलेंस के जरिए पार्टी CHC अस्पताल में शव को भेजा गया था। मृतक शख्स के जेब में से मिले आधार कार्ड के जरिए मृतक का नाम गोपाल छेत्री, मूल निवासी वेस्ट बंगाल और फिलहाल निवासी बेसलापाड़ा एक कंपनी के रूम में रहते होने का बाहर आया है। वापी टाउन पुलिस द्वारा बलिठा से शराब से भरे हुए कंटेनर को झड़प कर पुलिस ने 15.21 लाख के मुद्दामाल को किया जब्त। वापी टाउन पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक अशोक लेलैंड कंटेनर नंबर MH04AU 3226 की चालक सुनील राधे श्याम पार्थ दमन से शराब का जत्था भरकर बलिठा से होकर पसार होने वाले हैं। इसी जानकारी के आधार पर वापी टाउन पुलिस द्वारा बलिठा चेक पोस्ट के पास वॉच रखी गई थी। उस दौरान कंटेनर पहुंचते उसे रोककर
कंटेनर में तलाशी लेते कंटेनर में से 5,676 शराब की बोतल जिसकी कीमत 7,16,400 के मुद्दा माल जब्त कर चालक ने बताया कि दमन से नीलेश केवड़ी नामक शख्स निवासी दमन और अनिल उर्फ लालू ने यह भरवाया था। वापी टाउन पुलिस ने आरोपी चालक को पकड़कर नीलेश और अनिल उर्फ लालू सुलपड़ा को वांटेड जाहिर कर 15,21,400 के मुद्दा माल को कब्जे में लेकर आगे की जांच पुलिस द्वारा शुरू की गई है। गुजरात के सीमा क्षेत्र में आए गांव को दादरानगर हवेली में मर्ज करने की बात को लेकर गांव के लोगों में फैली नाराजगी। गुजरात के बलसाड़ सीमा क्षेत्र और दादरानगर हवेली के सीमा क्षेत्र से जुड़े मधुबन, रायमर, नगर जूथ ग्राम पंचायतों को दादरानगर हवेली में बरसों पुरानी मांग को लेकर 28 जनवरी को गोवा में आयोजित होने वाले वेस्टर्न काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी बाद फैसला लिया जाएगा, जिसकी माहिती को लेकर गांव में विरोध का सुर खड़ा हुआ है। गांव के लोगों का कहना है कि हम लोगों को गुजरात में रहना है। इस बारे में कलेक्टर, राज्य प्रधान, मुख्य प्रधान के समक्ष बात रखेंगे। मुख्यतः एक वक्त पे आदिवासी क्षेत्र में कई सारी प्राथमिक सुविधाओं का अभाव था, जिसको लेकर संघ प्रदेश की सीमा क्षेत्र मेघवाल, रायमा, मधुबन और नगर जूथ में से मेघवाल गांव के लोगों ने गांव को दादरानगर हवेली में मर्ज करने के लिए बात रखी थी, पर बरसों पुरानी इस बात के बाद गुजरात राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक सुविधाओं को पूर्ण किया गया और कई सारे विकास के कार्य भी हुए हैं। तो अब गांव के लोगों ने दादरानगर हवेली में मर्ज करने की बात को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही इस बात को लेकर कलेक्टर श्री, राज्यपाल श्री, मुख्य प्रधान तक बात को ले जाने की गांव के लोगों ने बात रखी है। साथ ही अगर न्याय नहीं मिला तो आने वाले दिनों में आंदोलन करने की भी चिमकी दी है। धर्मपुर तहसील के भवाड़ा गांव में भवाड़ा ग्रुप ग्राम पंचायत द्वारा नेत्र निदान कैंप का हुआ था आयोजन। धर्मपुर तहसील के भवाड़ा गांव में भवाड़ा ग्रुप ग्राम पंचायत द्वारा हॉल में नेत्र निदान कैंप का किया गया था आयोजन, जिसमें 187 लोगों ने आंखों की जांच करवाई थी। VRX विजन RX लैब प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से आयोजित इस गांव में नेत्र निदान कैंप मेघवाड़ और आसपास के लोगों ने हिस्सा लेकर आंखों की जांच करवाई थी। साथ ही मरीजों को निःशुल्क चश्मे का वितरण भी किया गया था। कार्यक्रम के दौरान गांव के सरपंच, उप सरपंच, माजी सरपंच, सभ्यगण और अग्रणियों ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया था। दादरानगर हवेली में मलयाली एसोसिएशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। दादरानगर हवेली में मलयाली एसोसिएशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजित कर गणतंत्र पर्व को मनाया गया था। मलयाली एसोसिएशन द्वारा विनोबा भावे सिविल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया हो। 75 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्यांक रखा गया था। मलयाली एसोसिएशन का कहना था कि आज की कोविड-19 महामारी को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। हर साल मलयाली एसोसिएशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। मरीजों को रक्त की कमी को दूर करने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। अभी ये कोरोना का वजह से जनरली हम लोग करते हैं तो 150 का टारगेट लगता है, मगर उसमें 135 तक हमारा टारगेट गया है। लास्ट ईयर भी गया था। उसमें से अच्छा जो ब्लड है, मतलब ब्लड जो ले सकता है, उसमें 100 का आसपास आता है, 105, 6, वगैरह आता है। इस साल हमने 75 का ही टारगेट रखा है, क्योंकि कोरोना इतना बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन का भी ये हो रहा है। फिर भी जो भी सोशल वर्क करने के लिए नगर हवेली मलयाली एसोसिएशन यहाँ पर जैसा संगठन हुआ है, उस टाइम से हमने कुछ न कुछ भी आएगा, कोई गवर्नमेंट का तरफ से कुछ कॉल आएगा, कोई एनजीओ का तरफ से कोई काम करना हो, सबके लिए हम लोग जाता ही है। और ब्लड डोनेशन हम लोग, हमारा मतलब दिल में लिखा हुआ ही है, हमको करना ही है। कोई भी चीज़ आता है हम लोग पीछे नहीं हटता है। अभी जैसा आता है, किसी को अगर कोई पैसा का जरूरत है कोई इलाज करने के लिए, इसके लिए भी हमारे पास आता है। हम हमारा हिसाब से जो दिल में लगता है वो कंट्रीब्यूट करके दे देते हैं, मगर उसके लिए हम लोग लीडरशिप लेते हैं नगर हवेली मलयाली एसोसिएशन। बट
वो सीधा हम लोग को बहुत कम करता है, सीधा हमारा ग्रुप में डाल देता है, ये आदमी को पैसा का जरूरत है, इसको इलाज करना है, इसको फलाना जो भी होगा, तो उस हिसाब से देते हैं। तो सब लोग एकदम दिल खोल के सामने आ जाते हैं। ऐसा है कि लास्ट ईयर भी अभी मतलब 10-12 साल से हम हम अपना हिसाब से कुछ बेडशीट वगैरह 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 दिलाते थे जो भी आ रहे हैं उनको। उसके बाद ये कंडीशन चेंज होते रहा क्योंकि लेने के लिए कम से कम 300-400 रुपया होता है कि 100 का ऊपर देना बोला तो बहुत बड़ा एक ये हो जाता है। इसके बाद हमने रोटरी क्लब, लायंस क्लब, उनको हमने गया, उनसे रिक्वेस्ट किया। अभी इन लोग सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, सिलवासा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, जैसा रेड क्रॉस है, कभी भी हमारे साथ दिया है कोई भी काम करने के लिए, कुछ भी आप बोलो। और दूसरी बात है कि कोई भी कंपनी में किसी को भी कोई दिक्कत होता है, ब्लड का जरूरत होता है, हमारा ऊपर वाया फोन आता है, वो हमने ब्लड बैंक में बोल देते हैं तो तुरंत दे देता है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। पार्टी में चोर बने बेफाम, फिर से एक बार 2 जगह पर चोरी का किया प्रयास। वलसाड़ पुलिस की टीम ने धमराची से 30 लोहे के पोल को किया जब्त। पार्टी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर खड़ी एक ट्रक के पीछे बाइक चालक घुस जाते हुई थी दुर्घटना। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।